They are called as a jumping gene also, no? Jumping gene. तो jumping gene क्यों कहते हैं? Because Barbara McClintock observed that whatever the maize color was there, that's because of some gene which are jumping from one place to another place, right? That's why this name was given. And this jumping gene was sometimes special, something special. It was believed earlier that this was exclusively present in the eukaryotes only, but later on it was identified that this is also part of microbial, bacterial system, right? So later it was identified that there are simplest transposons which are called as the insertion sequence element or IS element. Second one is the composite transposons. You can see the example of simple transposons. Simple transposons converts, inverted repeat, one transposon, second and third ampicillin resistant gene. Right. So there are two IR, and transposase resolvase means they have self system to jump. Okay. While if you can see the composite transposons consist of more than one IS element. This is the complete IS element. This is the complete IS element. So this is here 1, this is 2, and in between them there is a antibiotic resistant gene. For example, tetracycline resistant gene is present in CN10, transposon 10. And simple one called as CN3, complex one called as a TN10. So if you see IS element, this is less than 50 base pair on both sides, but direction is changed. Direction is just opposite. And also you have to differentiate between the different kind of transposon based on presence of transposase, resolvase, right? If they are present or not. Also, sometimes you cannot see the ampicillin resistant gene, but it never happens. For example, in non-composite transposon, it includes all the two properties, right? That's why this is called as a non-composite transposon. We will see what we are going to study today. We are going to study about the different kind of transposition mechanism. Transposon you can see in the bacterial system, their features, how they are jumping, how they are targeting the donor site, right? And in the eukaryotic system. So if you will see in the bacterial system, just as it now, IS element, composite, and non-composite one. Eukaryotic में there are animal and there is a plant system, right? If you are talking about the animal, especially human beings, there are different systems. For example, yeast, Drosophila, and in human being also, right? So yeast TY1, Drosophila, P elements, all the example you have to remember. And human being, there is a line, large one, and sign, small. Alright, so this is L1, this is sign. The plant has a different system. So there a transposon is a kind of gene. It's kind of a special gene, right? Yes. They were first identified by Barbara McClintock, and she was awarded Nobel Prize in 1943. Right, and there is a specific transposition mechanism. So what is the transposition mechanism?
transposition mechanism that is totally different in different kind of systems. For example, you can see in the bacterial system, sometimes they have the cut paste mechanism, right? Yes, sir. Mechanism. Sometimes they have the direct mechanism, sometimes they have the transposes and dissolvases, right? This is called as the autonomous. Autonomous. And they may be direct. And Yes. if these systems are not present, then these genes are moving with the help of host system. So this is called as the non-replicative or non-autonomous, right? Because Yes, they are sir. the host system. So we will see the detailed transposition mechanism and their detailed classification with examples. For example, P element, you can see there is a mechanism called as hybrid disgenesis. Right. So you can identify these transposons with the help of fusion of these male versus female. And in the germ line, you can detect this mechanism called as the hybrid disgenesis, means hybrid formation, which gives rise to sterile individuals. And in the same way, yeast you can identify, in the same way human you can see, you have observed that there is a repeats, tandem repeats are there, sometimes short repeats are there, sometimes long repeats are there. So all this is because of these special sequences called as the lines and signs. Plant we will study in the special reference. So let us start. This was just an overview. So what is the mechanism? Some have transposes gene, transposes protein, and then with the help of this enzyme, they are able to cut transposons out, okay, and then they can insert the target gene into the donor gene. So what is the consequences? There are multiple consequences. Even you can see there is a disease because of this insertion of the repeated sequences. Some human hereditary defects have been identified, which is due to increase in number of tandem repeats. Sometimes there is a short tandem repeats arises by the replication slippage. So this term can be asked. What is the replication slippage? For example, you can see this is the primary sequences which has to be replicated, right? So now in replication, what you can see, instead of 3T, there is a 4T. Okay? Yes, sir. 3T, there is a 4T. This is called as the replication slippage. Okay, so replication slippage means some kind of short repeats arises either due to mutation or due to chance. So as a result, this disease is going to arise, myotonic muscular dystrophy. So sometimes duplicative transpositions occur, because of which longer repeated sequence arises, and they are going to insert longer sequences causing mutation or some kind of another defect. So we are talking about the composite versus non-composite. You can identify, sometimes it's given, it's a feature is given, and you have to identify which one is the composite, which one is the non-composite. Okay. So composite, you can see they have the tetracycline arrangement gene and two IS elements. Left IS10 left, IS10 right. These are the inverted repeat of IS elements, and they consist of around 10,000 base pairs. That's why this is called as the TN10. Okay, based on the base pair, the naming is done. And the TN3, you can see around 3,000 or more than 3,000. Yes, so, but they have some more sequences like transposons is there, resolvase is there, beta lactamase is there.
So this is the inverted repeats, and one of them is responsible for coding of this transposes by which they can start their transposition, their movement. Non-composite transposons, they are very similar to composite transposons, and they cause target site duplication when they move. For example, TN3, right? We have seen the structure of TN3. What is the TN3 having? They contain the IS elements, then transposes, then you have to learn the diagram well, है ना? Yes, sir. Transposes भी होंगे, resolves भी होंगे, and then antibiotic resistant gene, then again inverted repeats. IR right, not IS. Okay, this is the TN3. So they are when they are moving, they are producing a 5 base pair target site duplication, and they can insert into the genome. So first, the donor DNA containing the transposable element fuses with the recipient DNA to form a co-integrate. Co-integrate. Co-integrate means fusion of two. Fusion of donor Two. plus fusion of Receive. recipient. है ना? A recipient. So this causing a structure called as a co-integrate. देखा आज कोई नहीं आया हम लोग वेट करते तो अभी so this is not the way आप वेट नहीं करो start your work don't wait in life किसी का वेट नहीं करना लाइफ में that's why life is beautiful काम पे लगे रहो तो चलो छोड़ो इसको conservative replication sometimes you can see the different kind of mechanism DNA without replication of the element means all the sequences are conserved. Right, so mechanism is called the conservative non-replicative transposition, and this is occurred by cut and paste Transposition. Right. In other words, the element is lost from the original position when it moves Transpose. because they are not replicating. They are non-replicating. Means if they are replicating, the original sequences must be there and also a duplicate one should be there. Right. But it's not happening. They are सर totally जो ट्रांसपोजन होते हैं उनमें रेप्लिकेशन नहीं होती है नहीं दो तरीके को हो गया ना एक Yes, sir. हो गया रेप्लिकेटिव और एक हो गया नॉन रेप्लिकेटिव राइट यस सर तो जो रेप्लिकेटिव होगा तो सपोज दिस इज अ लॉन्ग सीक्वेंस एंड द जीन इज देयर ये जीन है तो ये ओरिजिनल जीन है ठीक है यस अब अगर ये भी रहती है और ये जंप भी कर जाती है तो क्या होगी ये रेप्लिकेटिव दिस इज रेप्लिकेटिव नॉन रेप्लिकेटिव में क्या हो रहा है नॉन रेप्लिकेटिव में द ओरिजिनल जीन इज जंपिंग ओके सर गॉट द आइडिया यस सर जीन इज जंपिंग एज अ रिजल्ट दिस वन इज लॉस्ट दिस जीन हैज बीन लॉस्ट लॉस्ट यहाँ पे आ गया विदाउट प्रिजर्विंग विदाउट कंजर्वेटिंग दैट्स व्हाई नॉन रेप्लिकेटिव इज आल्सो कॉल्ड एज कंजर्वेटिव मैकेनिज्म रेप्लिकेट यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा है दिस इज नॉन कंजर्वेटिव कंजर्व नहीं कर रहा है ये अपने को मेंटेन कर रहा है बस मूव कर रहा है जहां जा रहा है डिस्टर्बेंस कर रहा है ओके यस So conservative is also called as non-replicative. Kindly remember the term. Conservative is non-replicative. ऐसा नहीं समझना कि replication करेगा तो conserve करेगा ऐसा माइंड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए ठीक है यस सर Original element is lost from the original position when it transposes. Right? So for example, TM10 transposes by ये कंजर्वेटिव very important. This is very important. ठीक है यस सर हेलो लक्ष्मी समझ में आ रहा है तुम्हें कैसे बता दूं हाँ सर थोड़ा तो हम बता रहे थे कि initially the Barbara McClintock
identify that there are some sequences which are jumping in the maze and that causing the kernel color change. So that's were called, earlier they were called as jumping gene or self-phase gene. ठीक है ना? So later they were identified also in the bacterial transposons, and in the classification it was found that simplest one is the IS element, and then if more than one IS elements are there, then they are forming the composite one. For example, you can see composite transposon TN10. So they are containing the two IS sequences, insertion sequences, IS10L, IS10R. Having tetracycline resistant. Tetracycline resistant gene. Right. This is the simple sequences. Okay. This is a simple sequences. Transposon TN3. So they are itself, this is IS. This complete sequence is called as the IS. Means they are containing transposes, resolvases, and ampicillin resistance. So this is a transposon, means composite transposon, complex transposon. ठीक है ना? Composite one. Non-composite transposon, they are totally different. How they are different, you can see here. What is the mechanism of transposon gene? Transposition. There are some transposes gene, right? They are encoding some enzyme called as the transposes. Transposes are responsible for cutting some gene. Transpose enzyme. And they insert that gene in the target sequence. Okay. So there are two consequences. Might be short repetitive sequences may be inserted because of replication slippage. Replication slippage occurs when there is a mutation or by chance there is insertion of some extra sequences. For example, here you can see 3T. This is 3T. Here this is a 4T. So this is called as a replication slippage. This can be asked in the examination. Replication slippage. Replication slippage. So some human hereditary defects causing some kind of insertion causing such disease called as a myotonic muscular dystrophy. MMD. ठीक है ना? Sometimes long sequence may be inserted. So when we arrived, then we were discussing this TN10 versus TN3. What is the non-composite? Non-composite are very similar to the composite one. And best example of non-composite transposon is TN3, and they produce target site duplication when they are inserting a 5 base pair sequences. So they are producing a kind of co-integrate. What is a co-integrate? When donor plus recipient. Donor plus recipient. They are inserted and they are forming a kind of special structure called as the co-integrate. So second type of transposition mechanism involves conservative replication. कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. तो इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे. कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन also called as non-replicative transposition. Why they are called as non-replicative? ये हम डिस्कस कर रहे थे कि रेप्लिकेटिव नॉन रेप्लिकेटिव में द ओरिजिनल जीन, दिस इज सपोज ओरिजिनल जीन. So in replicative transposition, this is present at the original place, and also duplicate one is present at the another side, donor side. So original side from here, this is lost, and they move to the donor side. So this is a kind of loss at the original position. Okay. That's why this is called as a conservative but non-replicative. But replication is not. पोजीशन चेंज होता है, वो मल्टीप्लाई नहीं, रेप्लिकेट नहीं होता है. चेंज होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा. So that's why it's called as the conservative replication. Non-replicative. ठीक है. So you can see the co-integrate formation between the donor and
target sequence. This is the donor sequence. Transposable element is there. Inverted repeats is there. And this is the target sequence. Then donor and recipient DNA nicked and at arrow by transposes. Donor and recipient DNA fuses. So they are forming the co-integrate like Co-integrate. Co-integrate कैसे बनता है ना? Then there further resolution. After formation of co-integrate, there is a resolution. Resolution होगा तो there will be formation of 2 DNA molecules. तो ये मैकेनिज्म ही ऑब्जर्व हुआ कर्नल क्लब. जस्ट फोल्ड ऑन. हाँ. Means Nikon. कुछ म्यूजिक लवर्स है ना, कुछ ज्यादा ही फास्ट म्यूजिक हार्ड चलता है. चलो दुनिया धीरे धीरे. अच्छा ये बताओ ना, इसमें एक क्वेश्चन है. कुछ आप देख रहे होंगे, कुछ में तो कलर चेंज है, बट कुछ में कलर बिल्कुल चेंज नहीं है. वाई? रिकॉम्बिनेशन. सोचो ना, साइंटिस्ट हो, आपको ऑब्जर्वेशन होगी, आप क्या मैकेनिज्म एडवाइस करोगे? सर ये सब रिकॉम्बिनेशन से होता है. जीन नहीं, कुछ में तो ट्रांसपोजिशन हुआ और कुछ में ट्रांसपोजिशन होके रिवर्ट बैक हो. ओके. ट्रांसपोजिशन हुआ, रिवर्ट बैक हो गया. तो ये देखो, यहाँ पे देखो, ये रिवर्ट बैक कर गए, मतलब वही जो रेप्लिकेटिव नॉन रेप्लिकेटिव तुम देख रहे हो, ओरिजिनल पोजीशन से लॉस्ट हो गए, मूव कर गए. तो ये यहाँ पे एसीडीएस सिस्टम से एक्सप्लेन किया गया. बारबेरा मैक्लिंटॉक ने इस सिस्टम से एक्सप्लेन किया चीजों को कि सपोज एसी मीन्स एक्टिवेटर, कंट्रोलिंग एलिमेंट, हाँ, एंड डिसोसिएटर. ठीक है ना? दिस इज द नॉर्मल सी जीन एक्सप्रेसिंग पिगमेंट प्रोडक्ट. अब सी में डिस्टर्बेंस अगर हुआ, जैसे यहाँ पे इंसर्शन हुआ, ठीक है. सर डीएस क्या होता है? एक बार. डीएस मतलब डिसोसिएटर, एसी मतलब एक्टिवेटर. हाँ, डिसोसिएशन एंड एक्टिवेटर. ठीक है ना? पर्पल करना तो तब बना जब एसी डीएस अपने जगह पे थे, है ना, और सी नॉर्मली एक्सप्रेस कर रहा था, तो पर्पल हो गया. अभी एक्टिवेट डीएस ट्रांसपोजिशन, एसी ने एक्टिवेट कर दिया डीएस को. अब ये डीएस मूव करने लगा, डीएस कैन ट्रांसपोज इनटू सी, तो ये डिसरप्ट हो गई थी. तो एज ए रिजल्ट पर्पल चेंजेस इनटू द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर. तुमको एक वीडियो देखना, कभी सर्च करना. एक केरला में ही एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया. उसने अपनी मुर्गियों को क्या किया, पालक की पत्तियां खिलाता था डेली. समझ गए क्या खिलाता था? पालक की पत्तियां. तो उसके अंडे जो है सारे हरे हरे हो गए. जितने अंडे देती थी वो सारे हरे होते थे. तो वो 100 रुपए में एक अंडा बिकता था. वो ऑर्गेनिक अंडा हो गया क्योंकि उसमें पत्तियां थी, उसकी क्लोरोप्लास्ट थी. तो और लोगों ने उन अंडों में फिर आयरन भी बहुत सारा होगा. जो भी हो, 100 रुपए में बिका वो. तो उसने क्या किया कि ऐसे करीब 5000 मुर्गियों को, जहां उसके पास 100 मुर्गियां होती थी, वहां 5000 मुर्गियां ले आया और सबको वही खिलाता था. किसी को नहीं बताता था कि मैं क्या खिलाता हूँ. सर ऐसा हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है. और देखो, वो हरा कलर सिर्फ एगशेल का हुआ तो लोग तो मतलब अक्कल ही नहीं लगा रहे ना, क्योंकि वो एगशेल तो हम वैसे भी नहीं खाते. नहीं, एगशेल तो वैसे ही कलर का रहेगा, व्हाइट कैल्केरियस होता है ना. हाँ. अच्छा, तो अंदर कलर का नहीं हो गया. अंदर जैसे खोलोगे वो हरा होगा. अच्छा, अंदर जो व्हाइट पोर्शन होता है एल्बुमिन, वही ग्रीन हो गया. हाँ, एल्बुमिन पार्ट जो है सारा ग्रीन हो गया.
तो उसने कलर चेंज कर करके देखा, जब ब्लू कलर की पत्तियां खिलाता था तो ब्लू अंडे हो जाते उसको 1,000 का बेचता था। तो सिर्फ फिर उनको बीट रूट खिलाओ, फिर पिंक कलर के अंडे भी हो जाएंगे। मतलब ये देखो ना कि बायोलॉजी पढ़ के हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं पढ़ते ही रह गए, पढ़ाते ही रह गए, ठीक है। हम और जिस कलरफुल बंदे अंडे को, बना सकते थे। हाँ, जिस बंदे को बायोलॉजी पता नहीं, जिसने अंडे बना के 1,000 कमाए। तो सुकरात ने बहुत अच्छा लिखा है कि अगर एजुकेशन आपको जॉब नहीं दे सकती, मतलब आपको क्रिएशन नहीं दे रही है, कुछ आप क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो एजुकेशन फेल है। तो ये इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि बी क्रिएटिव, थिंक क्रिएटिव कुछ भी संभव है। और मैकेनिज्म अगर आप सोचो, उसने भी सोचा होगा कि यार ऐसा करते हैं कि मतलब उसका कलर कुछ हो सकता है चेंज हो, तो हम डिफरेंट खिलाते हैं। तो उसने डिफरेंट खिलाया तो सारे अंडे हरे थे। उसको कुछ दिन तक तो समझ ही नहीं आई, और उसको लोग मतलब ज्यादा प्रिजर्व करके रखता था तो लोग ज्यादा पैसे देते थे। वो कहता था हम नहीं देंगे, ये तो हमारी स्पेशल है। तो लोगों में भीड़ लग गई, नहीं बड़ा स्पेशल है भाई, हरे फोड़ने पे हरे अंडे आते हैं। तो वो भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो गया। हमने तो भाई सर वो कुछ और म्यूटेशन हुई होगी। कोई नहीं, सब मुर्गे नॉर्मल थे। उसके मुर्गे भी ऑर्गेनिक वेस्ट थे। सर ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जो फूड खाएगा उसी का तो एक सेल में जाएगा। सर मतलब फूड जो बनता है ना वो जो ये होता है ना मुर्गी या मुर्गा, तो उनके उसमें जाता है ना, जैसे स्टोमक, कुछ गिजट कुछ बोलते हैं ना उसको, सर मुझे याद नहीं वर्ड को पूरा, जिसमें जाता है। तो वो फिर अंडे में कैसे ग्रीन कलर गया सर? तुम वीडियो देखना, उसका कलर देखना, फिर उस पर रिसर्च करना, फिर मुझे बता। स्पॉटेड कर्नल कैसे हुआ? रिवर्ट बैक कर गया, डीएस सिस्टम जो है रिवर्जन हो गया। ये आप देख रहे हो, इसी बात को हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि व्हेन डीएस सिस्टम इज डीएस सिस्टम इज removing themselves or kind of, है ना? Yes, they sir. are, so they convert into the normal figures. That's why you can see the spot. Once you can see here, we have marked this, right? So easily you can understand कि अब मुर्गी का अंडा मुझे इसी से याद आया, ये जीन का सारा खेल हो रहा है, बट वहां पे जीन का कोई खेल नहीं है, वहां पे खाने का है सारा खेल। तो एसी ट्रांसपोजिशन मैकेनिज्म क्या हुआ? डोनर साइड एसी रेप्लिकेटेड एसी एलिमेंट इन डोनर साइड। अब आपको देखना है कि एसी ने कैसे डीसी को एक्टिवेट किया। तो देयर आर टू मैकेनिज्म, ट्रांसपोजिशन टू एन ऑलरेडी रेप्लिकेटेड रेसिपिएंट साइड, ट्रांसपोजिशन टू एन अनरेप्लिकेटेड। तो डोनर साइड पे कैसे जा रहा है? एसी एसी, फर्स्ट वन वैकेटेड डोनर साइड, नो नेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ एसी एलिमेंट्स, यहाँ पे बढ़ा नहीं, ठीक है ना। और इधर देखा नेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ एसी एलिमेंट्स वैकेटेड डोनर साइड। तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट में भी दिया। तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का इसी से पता लगाया गया। So many plant transposable elements occur in families. The autonomous element of which are able to direct their own transposition, and there are also non-autonomous element of which are able to transpose only when they are activated. तो आप समझ गए ये बात को? ACDS सिस्टम क्या है? रेप्लिकेटिव और नॉन रेप्लिकेटिव। दिस इज अ नॉन replicative. Why this is non-replicative? Because they need actuator for movement. ठीक बात है। The most non-autonomous elements are derived from autonomous element by internal deletion or complex rearrangement. So ACDS system is such a system which is non-replicative. Non-replicative means they need actuators for their movement. Similarly, you will find many examples, many examples. All they have one or similar kind of mechanism, right? So, for example, east TY element. Element में हमने बताया था, east में TY element है,
So these are long terminal repeats, delta, long terminal repeats. They encoding two proteins, and especially they are coding the retrotransposon. So they are moving by a mechanism, याद रखना important है. They are moving by the retrotransposon. So autonomous transposon समझ में आ गया आपको? Why they are called as autonomous transposon? Yes, sir. Because it there are encodes its own transposon. हाँ, they can move and they can code their own transposition. Right? एक बार देख लेते हैं ह्यूमन ट्रांसपोजन में, रिट्रो ट्रांसपोजन स्पेशली कहते हैं ह्यूमन में देयर आर टू टाइप ऑफ रिट्रो ट्रांसपोजन, लाइंस एंड साइंस. लाइंस मीन लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स हाउ मच लॉन्ग, 1000 to 7000 बेस पेयर. बैकग्राउंड कलर कूल है ना. 20% ऑफ ह्यूमन जीनोम, ये पूछा हुआ है परसेंटेज. लाइंस कितने परसेंट होते हैं ह्यूमन? 20% याद रखना. They don't have LTR, causes insertional mutagenesis. They causes insertional mutagenesis. 20% autonomous, और science 100 to 400 base pair non-autonomous. ठीक है, ये ऑटोनॉमस था. लाइन याद रखना. तो लाइन्स कैसे याद रखोगे? लास्ट साइंस, इसमें खुद ही लिखा SIN, नॉन, है ना. आलू वन का एक नया वर्जन है, ALU1. ALU1, आलू कह लो या जो भी कह लो, है ना. आलू. तो पी एलिमेंट पे हम डिस्कस करते हैं. अभी इस पे डिस्कस नहीं करेंगे. व्हाट आर द कॉमन फीचर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिबल एलिमेंट. There are two classes. They are found in both prokaryote and eukaryote, right? So mostly in eukaryote there is a RNA transcript via which they can integrate at new site. RNA transcript किसमें होता है? यूकैरियोट में. DNA transcript होता है, सॉरी, DNA to DNA is features of prokaryote mostly. ठीक है, प्रोकैरियोट में भी हो सकता है, यूकैरियोट में भी हो सकता है. यूकैरियोट मोस्टली RNA ट्रांसक्रिप्ट होता है. So they are transposable element are identified by their movement. They are also called as mobile genetic elements. Mobile genetic elements comprise of 45% of human chromosomal DNA, middle repetitive sequences ranging from 100 to few thousand base pair in length, contribute to spontaneous mutation, genetic rearrangement, horizontal transfer of genetic material. In germ cells, the transposed sequences at their new site can be passed on to succeeding generation. Within a somatic cell, transposed sequences transmitted only to daughter cell derived from the cell. तो अभी हम बात कर रहे थे कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट, क्या डिफरेंस है दोनों? कट पेस्ट में दिस इज अ ट्रांसपोजन, दिस इज द टारगेट साइट, तो दे आर नॉन रेप्लिकेटिव साइट, है ना. नॉन रेप्लिकेटिव देख रहे हो, दे आर लूजिंग द ओरिजिनल साइट एंड दे आर मूविंग द न्यू साइट. यस सर. कॉपी पेस्ट में क्या होगा? दिस इज अ कंजर्वेटिव नॉन रेप्लिकेटिव. ये हो गया कट पेस्ट. कंजर्वेटिव लिखते चलो. यस सर. और डीएनए ट्रांसपोजन्स मूव होते हैं कट और पेस्ट से, और रेट्रो ट्रांसपोजन्स होते हैं कॉपी एंड पेस्ट. कॉपी पेस्ट में क्या हुआ? नॉन कंजर्वेटिव, उल्टा होगा, नॉन कंजर्वेटिव एंड रेप्लिकेटिव. हाँ. इसको क्या बोलोगे? CNR नॉन रेप्लिकेटिव, और इसको क्या बोलोगे? NCR. ठीक है, NCR दिल्ली के पास है. तो यार कॉपी पेस्ट. और CNR राव केमिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे. मैं इनसे बड़ा इम्प्रेस होता था, बहुत अच्छा पढ़ा. इनकी किताब भी काफी, इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी थी, CNR राव केमिस्ट्री. एक्चुअली मैं बनना चाहता था केमिस्ट,
अच्छा बट बन गया बायोलॉजिस्ट। मैं बायोलॉजिस्ट इसलिए बन गया कि मेरी किस्मत में शायद वही था। हाँ मेरे सारे वही तो फ्रेंड सर, केमिस्ट थे। बनता हमेशा इंसान वही है जो किस्मत में लिखा है। हाँ, आपके चाहने से नहीं होता। वही तो सर, मैं तो हमेशा साइंटिस्ट बनना चाहती थी, मैं तो कुछ भी नहीं बनी। तुम मुर्गी पालो, हर एक बजाय नीले अंडे पैदा हम किया दिया ना तो। बीटरूट खिला के पिंक सर, अंडे निकालते हैं। हाँ, बीटरूट, यस यस, वेरी गुड। ये रेड रेड वाली टाइप की मैं अभी करके बोला देखो था ना। सर कि हम बीटरूट खिलाएंगे और बिल्किस, पिंक अंडे बनवाएंगे। बिल्किस के दिल की बात, रात 8:30 बजे मेरे साइंटिस्ट तुम बन गई साइंटिस्ट। ऐसा क्यों फील होता है कि तुम साइंटिस्ट नहीं हो? देखो, साइंटिस्ट क्या होता है? साइंटिस्ट सर्चिंग फॉर एन आइडियाज। वो कभी आइडियाज कहीं से भी क्लिक हो सकता है ना? यस चाहे सर, वो हरी मुर्गी के अंडे से हो सकता है, चाहे वो लक्ष्मी के आइडिया से कि हम लोग इसको बीटरूट खिलाएंगे और उसका अंडा रेड होगा। और वास्तविकता देखो, ये अभी हंस रहे हो आप लोग, दिस इज रियलिटी। इसको कहते हैं, हाँ बायोटेक्नोलॉजी में अगर डेप्थ में पढ़ा, बायो फार्मिंग बोलते हैं इसको। यस बायो सर, फार्मिंग। फार्मिंग। बायो फार्मिंग में यही है कि आप जो भी न्यूट्रिएंट दे रहे हो, अगर वो अंडे के थ्रू आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आप बीटरूट नहीं खाना चाहते, मैं भी नहीं खाना चाहता, लेकिन मैं अंडे खा सकता हूँ। यस सर, तो दिस इज नॉट एन काइंड ऑफ, है ना, ये एक तरीका का इन्वेंट्री है बायो फार्मिंग। आपने ये आइडिया लग गया, नाउ यू आर ट्राइंग। अगर सक्सीड हो गए तो आपने एक क्या एक नया प्रोस्पेक्ट खोल दिया, कई लोगों को मतलब रोजगार भी मिला और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ गई। और सबसे बड़ी समस्या, मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ माल न्यूट्रिशन पे। सर वही तो, माल न्यूट्रिशन को जैसे कैसे देख अंडा, सकते? सर जैसे हम अंडा खाते प्रोटीन के लिए, अगर आप वो पालक वाला अंडा बनाएंगे तो उससे आयरन भी मसाला मिलेगा बहुत। बनाओ, आयरन मिलेगा, फिर इसमें ब्लड हीमोग्लोबिन के लिए मिलेगा कंपोनेंट, है ना, यस सर, वही फ्रूट में। तो वही तो काफी अच्छा बीटरूट है। में भी हो जाएगा। देखिए ना, कलर भी आया, बच्चे भी खा रहे हैं, सबकी माल न्यूट्रिशन भी प्रॉब्लम होगी, ज्यादा महंगा भी नहीं है। यस हाँ सर, दिखने में भी अच्छा है। तो और महंगा हो जाता है ना, फिर तो वो 100 रुपए का अंडा बेच रहा है। वो तो तुम्हारे ऊपर है। तो मैं तो 200 का बेचूंगी। हाँ, तभी मैंने कहा दिल एकदम दिल की बात, बात की बात आ गई। दिलकिस नहीं, बिल्किस। अब तुम्हारा नाम भी चेंज हो गया, आज दिलकिस हो गया। चलो, बहुत फन हो गया। कुछ करो, रियली में ना, कुछ करना चाहिए। बिना करे तुम्हें बेचैनी होगी हमेशा, पढ़ पढ़ के क्या कर रहे हैं, है ना? कुछ करोगे तो अच्छा भी लगेगा तुम्हें। आज एक वीडियो मैं देख रहा था मॉर्निंग में, तो बहुत ही मुझे एक्साइटिंग लगा। दो लेडीज थी, वो मतलब वो गए थे जॉब के चक्कर में मुंबई। यस सर, ठीक है, तो कपड़े की फैक्ट्री में जॉब करते थे, उनके हस्बैंड भी काम करते थे, वो लेडीज भी काम करती थी, कपड़ा बनाते थे, साड़ी वगैरह। यस, तो वो फैक्ट्री बंद हो गई कोरोना में। अब वो मतलब उनको निकाल दिया गया। निकाल दिया गया तो वो बिहार लौट आए। बिहार लौट आए, पैदल ही आए थे बेचारे से, तो मुंबई से ओह, थोड़ा लिफ्ट लेके, थोड़ा मतलब बहुत ही मुसीबत से आए थे, पैसा एक भी नहीं था, किसी ने हेल्प भी नहीं की। तो चलो घर आ गए, तो वहां के डीएम ने क्वारंटाइन में रख दिया उनको। ठीक है, फिर उनसे यस बातें सर, करने लगा कि आप वहाँ क्या करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कपड़े बनाते थे। तो उन्होंने कहा कि कपड़े बना लेते हो? कहते हैं हाँ, सारा बना लेते हैं। सारा प्रोसीजर समझा दिया उसने। फिर उसको 25 लाख का लोन दिलवा दिया, बड़ी मेहनत करके। डीएम ने अपने मतलब रिस्क पे दिलवा दिया कि अगर ये नहीं पे करते तो चलो मैं पे करता हूँ। अब वो फैक्ट्री चल पड़ी, क्योंकि वो ओह, कारीगर थे ही, उनको आता ही था सारा कुछ। तो हमारे साइंटिस्टों में यही प्रॉब्लम है, हमें थ्योरेटिकल नहीं पता होना चाहिए। हमें अगर कुछ आइडिया आता है तो लेट अस स्टार्ट डूइंग वर्क। ठीक है, लेट अस यस सर, स्टार्ट डूइंग वर्क। व्हाई वी आर नॉट वर्किंग, दिस इज अवर प्रॉब्लम। क्यों हम पढ़ के छोड़ देते? वो तो बारबारा मैंने ने किया। बारबारा ने 30 साल काम किया, लेकिन अल्टीमेटली उसको नोबेल प्राइज भी मिला, उसने छोड़ा नहीं, उसको किया काम। तो हमारे इंडियंस में और फॉरेनर्स में प्रॉब्लम बस एक ही लाइन की है, ये
हमारे इंडियंस बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, दिल की बातें कुछ करने वाला भी चीज होना चाहिए ना, कि हम करके दिखा रहे हैं, ये लो देखो। मुर्गी अगल बगल होगी, तुम्हें उसको 2-4 दिन खिला के देखो, जरा ऑब्जर्वेशन करो, क्या जाएगा, नहीं कुछ रिजल्ट आया, नहीं आएगा। तो फिर तो गाय इतना दूध ये घास खाती है, उसका दूध क्यों नहीं ग्रीन कलर का? नहीं, अब एक तो ऑब्जर्वेशन आई है, इस पे बात कर रहा हूँ ना। वो भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। नहीं, मिल्क का तो अलग मैकेनिज्म, वो तो लैक्टेटिंग ऑर्गन में जाएगा, वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होते हैं, है ना। अंडे में तो जाके स्टोर होना है, डिपोजिशन हो रही है ना। हाँ, दूध में डिपोजिशन नहीं है। अब तुम ये बल्कि कर सकते हो कि भाई ऐसा अंडा बनाए जिसमें दूध भरा हो। मुर्गी दूध वाला अंडा। चलो ये देखते हैं कि इंसर्शन एलिमेंट कैसे अपने को इंसर्ट, व्हाट इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म एंड हाउ दे आर इंसर्टिंग themselves into the target sequences. So what you can see here, this is the IS element, inverted repeat 1, inverted repeat 2, but this is the target side, there is a cutting, right? तो जब कटिंग हुआ तो इनकी कटिंग के बीच में कटिंग हुआ तो ये TCGAT हो गया एक साइड में और AGCTA हो गया दूसरे साइड में। इनके बीच में ये पूरा सीक्वेंस, सॉरी मुझे डिलीट करना पड़ेगा, अच्छा डिलीट हो जाता है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे इंसर्ट कर गया इनके बीच में। तो ये होस्ट DNA ब्लू वाला, इसकी कॉपी बन गई, तो नया DNA भी बन गया, और ये डुप्लीकेटेड इंसर्शन भी हो गया यहाँ पे। तो गैप फिल्ड बाय DNA पॉलीमरेज, DNA लाइगेज, दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे गैप किसने फिल किया, गैप फिल बाय लिख लो DNA पॉलीमरेज। पॉलीमरेज। कितना भी कोशिश करूं मेरी राइटिंग सीधी नहीं होती, या तो हवाई जहाज जीनियस होते हैं उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। हाँ, जीनियस होते हैं उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। मेरी राइटिंग तो बहुत कोशिश करता हूँ अच्छी होती है, बचपन में। मेरी भी सर आधी टेढ़ी मेरी है। लिख के दिखाओ, तुम तो लिख सकती हो वहां से। यस सर, बट अच्छी नहीं है। लिख सकती हो, टू वे मैकेनिज्म है। चलो ये तो समझ में आ गया, जल्दी से खत्म करें, ये आगे से नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, so original copy remain in place, new copy insert randomly, transposition required, transposes coded by the IS element. IS element otherwise uses host enzyme for application. Transposition initiate when transposes recognize ITRS. ये important है, transposition initiate when transposes recognize ITRS. This is the result of T. Transposon element is what is? This is a special DNA sequence that can change its relative position. That's called as a self-transposon within genome of a single cell. The process by which these sequences are copied, cut and paste, inserted into new site in the genome is called as the transposition. Discovery already you might be knowing. Barbara McClintock, 1950s. ACDS base influencing kernel color. Rediscovery of the same system in bacterial IS sequences, and McClintock recognized that breakage occurred at a specific site on maize chromosome. Indeed, the first transposable element he discovered was site of chromosome breakage, aptly named dissociation, DC. ठीक है, पहला जो डिस्कवर हुआ था वो DC था, वो याद रखना। So T can jump autonomously. She initially noted that movement of DS are regulated by an autonomous element called as activator. So this is a regulator. Activator is a kind of regulator. बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये हिस्टोरिकल चीजें कभी कभी माइन्यूटली पूछ देता है, ठीक है। Yes sir. McClintock also performed additional experiment to demonstrate that the phenotypic effect of DS dependent upon the presence of another element which he called AC. हाँ,
McClintock had trouble mapping both the AC and DS element, however, noting that they change their position on the chromosome in different ways. Plants. In fact, further experiments showed that a DS did not just break chromosome, but it could actually move from one chromosome location to another. So when DS insert itself into the BZ allele या C allele जो भी आप नाम दे दो उसको, ठीक है, thereby destroying the ability of the BZ gene to produce any pigment at all. DS can also excise from the BZ allele, causing BZ to revert back to its purple or brown phenotype. So already I think this is clear to you. What is the transposition? Transposition means insertion into the gene. Right? Increase or decrease gene expression by insertion into regulatory sequences. तो रेगुलेटरी सीक्वेंस में अगर इंसर्ट करेगा तो ट्रांसपोजिशन स्पीड घट या बढ़ सकती है. प्रोड्यूस क्रोमोसोमल म्यूटेशन थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन. राइट. So transposition is a non-homologous recombination with insertion into DNA that has no sequence homology with the transposition. So prokaryote में this may be transposition can be into the chromosome, in the plasmid or fossil. Eukaryote insertion can be into the same or different chromosome. Right. So now you can see prokaryotic system, IS elements, transposons, and bacteriophore cause mu system replicated by transposition. So again you can see the same classification. Insertion sequence, small sequences less than 2500 base pair, composite transposons, large sequences flanked by 2 IS elements. And also they contain a antibiotic resistant gene. Okay, already we have discussed this. Non-composite transposon, this is very important because they carry gene of antibiotic resistance but do not terminate with IS elements. Okay, you can see the right inverted repeat, left inverted repeat, but there is no IS element. TN3 is a 5 kb with 38 base pair ITRs and include 3 genes: blood, flour, TB. BLA means beta lactamase, transposase and resolvase. तो ये भी पूछ सकता है. TNP coded resolvase, TNP coded Transposons. BLA beta lactamase, Beta lactamase. TNPB resolvase, TNPA transposase. ठीक है, इसमें IS एलिमेंट नहीं होते हैं, नॉन कंपोजिट. दे आर containing the 38 base pair inverted repeat. टोटल साइज कितनी होती है TN3 की? 5 kb. TN10 की ऑलमोस्ट 10 kb है ना, 10 kb. और कंपोजिट में IS एलिमेंट जरूर होगा, राइट, जबकि नॉन कंपोजिट में देयर इज नो IS एलिमेंट. So why there is IS element in the composite transposon? Because IS element supply transposase and they are recognizing the ITR recognition signal. Model of transposition similar to that of IS element. Duplication at target site occurs. Transposition may be replicative as we have discussed. Copy paste. Right? Original position is lost. Non-replicative. ट्रांसपोजन लॉस फ्रॉम ओरिजिन साइट. कट पेस्ट में लॉस होगा, कॉपी पेस्ट में डुप्लीकेशन. ये याद रखना. रेप्लिकेटिव मीन्स डुप्लीकेशन, नॉन रेप्लिकेटिव मीन्स लॉस. ठीक है. रेप्लिकेटिव केस में दे विल फॉर्म द को इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर. रेप्लिकेटिव में दे कैन फॉर्म को इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर. ठीक है. तो वी कैन क्लासिफाई यूकैरियोटिक ट्रांसपोजिशन इनटू कॉपी पेस्ट, रेट्रो ट्रांसपोजन और कट पेस्ट डीएनए ट्रांसपोजन. इसको क्लास 1 कहते हैं रेट्रो ट्रांसपोजन को, एंड क्लास 2 को वी कैन कॉल देम एज ए डीएनए ट्रांसपोजन. कट पेस्ट. ये कंफ्यूजिंग है लेकिन याद करना पड़ेगा, राइट. Already we have discussed co-integrate formation. IS element already discussed. रेट्रो ट्रांसपोजन के एग्जांपल देख लो.
LTR, टाई 1, कॉपिया, टाई 3, जिप्सी, बायल 5 एक साथ है। नॉन LTR, लाइन, साइंस, आलूवन, एलवन। ठीक है, नॉन LTR ये पूछ देता है LTR की एग्जाम्पल कैसे, नॉन LTR की एग्जाम्पल क्या है, एंड हाउ दे विल मूव, दे विल मूव बाय द रिट्रो ट्रांसपोजॉन RNA इंटरमीडिएट। DNA वाले अलग होंगे, क्लास 2 में आएंगे ना DNA वाले, ये जैसे क्लास कट पेस्ट DNA ट्रांसपोजन क्लास 2, क्लास 1 अभी डिस्कस कर रहे हैं रिट्रो ट्रांसपोजन कॉपी पेस्ट, राइट। तो वाया DNA इंटरमीडिएट, वाया रिवर्स वाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से दो मैकेनिज्म हो सकती है, यू कैन सी DNA ट्रांसपोजन, वाया DNA इंटरमीडिएट, DNA दोनों इंटरमीडिएट, ये याद रखना DNA इंटरमीडिएट बनेगा ही बनेगा टारगेट DNA में इंसर्ट हो। रिट्रो ट्रांसपोजन में पहले RNA इंटरमीडिएट, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फिर टारगेट reverse DNA। transcriptase, and then they will be integrated. Clear है? ये समरी है। ट्रांसपोजन एलिमेंट्स आर मूवेबल जेनेटिक एलिमेंट्स, T are any segment of DNA that evolved the ability to move from place to place within genome. Rodias 1930, Barbara McClintock 1950 inferred existence of T from genetic study of call. T have now been found in almost all organisms previously considered selfish DNA, carried no genetic information useful to host. Now known that some T have evolved functions that are beneficial to host. T ranges पूछता है या 50 base pair to 10 kb. Right. So Barbara McClintock, discoverer of transposable DNA. Mammals have two major classes of T, long interspecies element line. Main line in human is L1, length is 6.4 kb and around 20,000 copies there. Size 3 lakh copies there. इतना छोटा उतना दुष्ट, ठीक है। L1 आलू sequences make up 7% of the human genome. T in the corn genome, they are causing the mottling of kernel caused by movement of T into out of the pigment. This was just a recap. Retrotransposon moved by reverse transcription of RNA intermediate. जो पढ़ा था हमने रिवाइज कर दिया। So you can see DNA only transposons, encoded transposons move as DNA, ये सारा देख चुके हो। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, P एलिमेंट, ACDS, TN3, TAN3, ठीक है। So retroviral like retrotransposon already you have seen via RNA intermediate, for example कॉपिया, टाई 1, BS1 में, है ना, THE1 ह्यूमन में। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका ये DNA का P एलिमेंट, ACDS का DNA, TN3 का DNA1, ठीक है, याद रहेगा। कॉपिया रेट्रोवायरल लाइक, ठीक है। टाई 1 रेट्रोवायरल, नॉन रेट्रोवायरल में F एलिमेंट L1, नॉन रेट्रोवायरल में आ गया, जबकि रेट्रोवायरल में कॉपिया, टाई 1, BS1। ACDS किसमें जरूर पूछेगा एग्जाम, DNA ओनली ट्रांसपोजन। तो ये समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। नॉन रेट्रोवायरल में भी दे आर इनकोडिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। 5 and is truncated, 3 and is composite, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस। अब तो जस्ट एग्जाम्पल ही देखना रह गया आपको ना, एग्जाम्पल क्या मैकेनिज्म है। ओके, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजन क्लियर हो गया। व्हाट इज रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजन? कॉपीड एंड पेस्ट, नॉन रेप्लिकेटिव कट एंड पेस्ट, ठीक है।
TN10 का मैकेनिज्म सब दे दूंगा, पढ़ लेना। टाइवन, टाइवन कौन सा मैकेनिज्म बताओ? डेल्टा रीजन होते हैं, कोडिंग रीजन टाई ए, टाई बी, these gene are gag and pole derived, ये पूछा जा सकता है। टाई ऑपरेटिंग फ्रेम, आवाज आ रही है बेटे? हेलो, यस सर, आ रही है। यस सर। तो ये अब इजी हो गया, अब तो क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया ना, बस फटाफट ही देखना, बहुत ज्यादा फिर इसकी बात नहीं। कॉपी या जिप्सी का भी एग्जाम्पल है, दे आर हैविंग सिमिलर मैकेनिज्म, टाइवन यानी रेट्रो ट्रांसपोजन। रेट्रो ट्रांसपोजन आ गया तो बाकी चीजें कुछ भी पूछे आप फटाफट बता सकते। कॉपी और पेस्ट मैकेनिज्म्स, रेट्रो ट्रांसपोजन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बहुत सारे मैकेनिज्म है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बोरिंग हो जाएगा फिर। ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। इसमें सर वो भी पी एलिमेंट ड्रोसोफिला का हाँ, उसका क्वेश्चन पूछ, और वो लाइन साइन वो पूछते हैं। P elements in Drosophila is one of the best example of transpositional element in यूकेरियोट। ठीक है, तो इसका क्या मैकेनिज्म वो बता देते हैं ना। वी कैन सी द स्ट्रक्चर। P element has a very simple structure, very similar to insertion sequences. They have Inverted terminal repeat 31 base pair. transposition protein can work in trans. IRN need insist for mobility, DNA between them is moved, right? तो उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करते हैं। आइए क्लासिफिकेशन एक बार देख लो ताकि क्लियर है। ट्रांसपोजन एलिमेंट इन ह्यूमन जीनोम, टाइप 1 क्लास 1 रेट्रो ट्रांसपोजन, टाइप 2 डीएनए ट्रांसपोजन, राइट। डीएनए ट्रांसपोजन का एग्जांपल याद रखना है, पिग्गी बैक, मर्डर, मूवी का नाम चल रहा है, मराइनर, है ना, ये सारी मूवीज का नाम है, मर्डर, पिग्गी बैक, मराइनर। नॉन एलटीआर में लाइन, साइन, प्रोसेस, सीरोजीन में HCRV, बस एक LEWFREHKL, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर ही होगा, तो ज्यादा टेंशन। लाइन्स कितने परसेंट होते हैं? 20 से 21% होते हैं, वो याद रखना है। लाइन्स में देख सकते हो, दिस इज स्ट्रक्चर, कभी स्ट्रक्चर डिटेल पूछ देता है। देयर इज द 80 रिच रीजन, ORF1 और F2, दिस इज द प्रोटीन कोडिंग रीजन एंड द टारगेट साइट डायरेक्ट रिपीट। बहुत क्लासिफिकेशन हमने रखी है, उसमें बाद में जा सकते हो, वंस यू हैव क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट। हाँ, तो वो तो जा सकते हो। अब हम आते हैं सीधे सीधे वहां पे पी एलिमेंट, हाइब्रिड डिजेंसी जिसको बोलते हैं। बहुत सारी चीजें रिपीट हो गई हैं। हाँ, ये तो क्लियर हो गया था, डिस्कस वाला। द रोल ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, हाइब्रिड डिजेंसी, इसी की बात कर रहे थे। इसमें जरूर पूछते हैं कि हाउ द हाइब्रिड इज प्रोड्यूस्ड विच आर स्टेराइल। नाउ जर्म लाइन में ये होता है, तो जर्म लाइन किस में होता है? एग में। जर्म लाइन का इफेक्ट किसमें आएगा? मैंने पी मेल is crossed with an M female, transposition is activated. तो P एलिमेंट को मान लो दिस इज अ ट्रांसपोजन, ठीक है। तो P एलिमेंट जहां पे होगा दे विल बी कॉल्ड एज P स्ट्रेन। अब P एलिमेंट नहीं है, नो P एलिमेंट, दिस विल बी M स्ट्रेन, दिस विल बी M स्ट्रेन। So when female is crossed with female, female is crossed with female M, then transposition is active. Why?
एक्टिवेट, क्योंकि पी एलिमेंट कहाँ पे होता है, मेल में होता है, ठीक है ना। जब वो जाएगा तभी फीमेल में एक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी पी एलिमेंट इज ट्रांसफर्ड इनटू द एग, ठीक है, तो पी एलिमेंट आर एक्टिवेटेड, तब ये हाइब्रिड बनेगा। और जब एग में पी एलिमेंट है और स्पर्म से क्रॉस करा रहे हो जिसमें पी एलिमेंट नहीं है तो देयर बी पी एलिमेंट विल बी रिप्लेस, और ये नॉर्मल है, इस तरह नहीं। तो ये समझ लेना, एम स्टेन मीन नो पी एलिमेंट, नो एक्टिवेशन, पी एलिमेंट, पी ट्रांसपोजिशन इज देयर एंड दे कैन बी एक्टिव। तो मेल टू फीमेल में होगा, फीमेल टू मेल में नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें क्वेश्चन आता है कौन सा हाइब्रिड बनाएगा, मेल में जब पी एलिमेंट होगा फिर बनेगा, या फीमेल में होगा पी एलिमेंट फिर बनेगा। पी एलिमेंट जो पी स्ट्रेन ऑफ ड्रोसोफिला है उन्हीं में प्रेजेंट होता है, एम में नहीं होता है सर। हाँ, तो स्पर्म टू एग में जब जाएगा पी एलिमेंट वाया स्पर्म, देन पी एलिमेंट इज एक्टिवेटेड। ओके, फिर सर एम कैरियर होता होगा इसलिए फिर एक्टिव हो जाता है अभी आगे। डिटेल कर रहा हूँ। So why this is called a hybrid disease? Because certain strain of Drosophila encounter difficulty in interbreeding. When flies from two of these strains across, the progeny display dysgenic trait, a series of defects including mutation, chromosomal aberration, distorted calculation at meiosis, and thus reduced fertility. This is called as hybrid disease. For example, you can see here when you are crossing the M female with the M female, so you are resulting in sterile hybrid. तो P element is going to egg via male, तब तो sterile होगा, ऐसे याद रखो। और P element is going via female, then they are normal, याद रहेगा। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, चाहे लिख लो, चाहे डायग्राम बना लो, चाहे जैसे भी याद करना है, मरो या जरो कुछ काम करो। सर क्या करे, कुछ नहीं है काम मेरे पास, करके काम तो काम करना के पड़ेगा, देखो ना, काम कुछ तो सोचना पड़ेगा। तुम्हारी साइड में क्या हो सकता है, अगर तुम अर्निंग करना चाहती हो, टाइम कम देना चाहती हो, बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, यू कैन ओपन, है ना। यस सर। जैसे मेरा एक छोटा भाई है, तो वो मुंबई गया, तो उसको कोई काम नहीं मिला, तो उसने क्या किया, पानी बॉटलिंग का सिस्टम ओपन किया, आरओ वाटर का। ममता ने मैसेज किया, सर टुडे इट्स इम्पॉसिबल टू ज्वाइन, नेटवर्क इज टू बैड टू हियर एंड वॉच द क्लासेस। उनका नेटवर्क चला गया। गुड लक। बाप रे, मेरी गुड़िया मैसेज देखती रहती है। ठीक है भाई, ब्रेक में समझ में आ गया कि इंटरवल में खलनायक क्या कर रहा था। खलनायक कौन है यहाँ पे, पी मेल है या फीमेल है, बस इतना याद रखो। खलनायक यहाँ पे है मेल, मेल। ठीक है। यस सर। जब उसके अंदर बदमाशी वाला जीन था तो उसका बच्चा भी नकारा निकला, एक नंबर का। यस सर। तो नकारा वाला जीन इंडियंस में ज्यादा पाया जाता है, मैक्सिमम बच्चे नकारा हैं, जैसे राहुल गांधी। नहीं सर, राहुल गांधी नकारा नहीं है, महानकारा खराब है। अरे वो आलू की फैक्ट्री से सोना बना रहा था, वो कौन सी केमिस्ट्री पढ़ के आया बताओ जरा। सर किस्मत खराब है उनकी। ये हाइब्रिड डिसजेनेसिस का शिकार है। चलो, ये तो हो गई मजाक की बातें।
ठीक है, समझ में आ गया। इसको पीएम सिस्टम कहते हैं, यस सर। फीमेल इंड्यूस डिजेंसिस, पी फीमेल रिड्यूसेस डिजेंसिस। ठीक है, यस सर। मैंने इसको बोला भी था कि इस तरह की सिस्टम अगर मॉस्किटो में डेवलप कर दे तो ये बड़ा अच्छा हो जाए, है ना। किसमें सर? मॉस्किटो में, ओके, मॉस्किटो में, है ना। मेल यस अपना सर। कोई उसमें अगर कोई, पता नहीं डिस्कवर हुआ नहीं अभी तक, मैं सर्च भी कर रहा था। तो इसका डाल दो ना, ये 200 पिला वाला पी एलिमेंट मॉस्किटो को मेल में डाल के देखो, है ना। यस सर। ट्रांसफर करता रहेगा, फीमेल जितने भी अंडे देगी सब स्टेराइल होंगे। यस सर। फिर ये मॉस्किटो खत्म डिस्कवरी हो ऐसे तो जाएंगे। होगी, जब आइडिया लोगे फिर डिस्कवरी होगी। फिर मॉस्किटो खत्म हो जाएंगे, पूरा मलेरिया वलेरिया खत्म हो जाएगा। हाँ, अब ये क्रॉस देखो, एग्जाम में आया हुआ है, फीमेल एंड और मेल, फीमेल फीमेल, ये क्या है सर? कहाँ फीमेल फीमेल लिखा है? अच्छा, दोनों फीमेल है, मेल कहाँ है? अच्छा, नीचे है फीमेल नो पी एलिमेंट, मेल में पी एलिमेंट, दम देन क्रॉस कराया, फिर क्या हुआ वो बात हो रही है ना, फ्लाइज स्टेराइल यस सर। और हाइब्रिड डिजेंसिस। फिर फीमेल पी नॉर्मल एलिमेंट, F1 प्रोजेनी नॉर्मल थी इसमें सर, हाँ, नॉर्मल अपीयरिंग प्रोजेनी, फ्लाइज और इन स्टेराइल। दोनों में नॉर्मल थी। फ्लाइज यहाँ पे स्टेराइल, पट, ओके, इसमें जिसमें P एलिमेंट नहीं था उसी में सर। बी वाला कुछ समझ नहीं है, बी वाले में क्या स्टेराइल होगी? सर इसमें हाइब्रिड डिजेंसिस जो से, B वाला है ना सर, उसमें P एलिमेंट फीमेल में है और मेल में नहीं है। तो वो तो तो नॉर्मल ही होगा, हाँ, तो सर वह स्टेराइल तो। सब नॉर्मल है, और जो फ्लाइज है वो सारी फर्टाइल है, तभी इतनी सारी फ्लाइज बन गई है। हाँ और यहाँ ठीक 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 ठीक, फर्टाइल हो, मैं उसको स्टेराइल पढ़ रहा हूँ। राहुल गांधी वाला जीन घुस गया मैं दिमाग में। राहुल गांधी जब भी सीधा सोचता है उल्टा बोलता है जी सर। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। The smallest type of transposons are known as, ओ मुझे तो कुछ याद नहीं है। बोलो 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 फटाफट। लक्ष्मी, अरे इंसर्शन सीखो, हाँ सर। इंसर्शन सीखो, स्मॉलेस्ट टाइप, ठीक है। हाँ। Insertion sequences. ऑल ट्रांसपोजन मस्ट कैरी, It transposes ट्रांसपोजेस। ठीक है। विच टाइप ऑफ ट्रांसपोजन कंटेन आईएस एलिमेंट, composite sir, composite, कंपोजिट। composite and Composite and often carry, non-composite transposon often carry gene for antibiotic resistance. True. ठीक है। sir Which ट्रांसपोर्टेशन transposition, is which referred as cutting. cotton paste, हाँ कंजर्वेटिव, नॉन रेप्लिकेटिव। Yes, CNR. हाँ, CNR की NCR कट पेस्ट है ना, Yes sir. NCR copy. कोइंटीग्रेट कम्स फ्रॉम CR कट, नॉन कंपोजिट। NCR था sir, NCR non conservative replicative. नहीं sir. नहीं, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मतलब जो एक जगह से कट होता है दूसरी जगह पेस्ट होता है, वो नॉन रेप्लिकेटिव। हाँ नान रखते, ठीक। हाँ। Co-integrate form during the process of, Replicative. नॉन कंपोजिट। कोइंटीग्रेट में एक डोनर एक रेसिपिएंट, तो यहाँ से काट दिया। दो ही ऑप्शन है। रेप्लिकेट, तो नॉन रेप्लिकेटिव ही है ये भी। नहीं, और ढेर सारे क्वेश्चन करते रहोगे, कौन सा है सर वो? बताता हाँ, हूँ। पीछे जाते हैं। हाँ, मेरा ना कभी कभी स्लाइड अटक जाता है, मैं जल्दी पूछती हूँ और फिर मेरे को पता चलता है कि हाँ स्लाइड जा रहा है।
क्वेश्चन आंसर ही करते हैं ना, फिर तो आइडिया लगेगा ना क्या चीजें। हाँ डायरेक्ट ही आते हैं। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। हो गई। हाँ सर, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया, आ गया। चलो ऑलमोस्ट ठीक टाइम जा रहा है, 9:30 तक पूरा नहीं है। हाँ चलो क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। अभी तुम्हें समझ में भी आएगा क्वेश्चन। हाँ, IS element can be identified by presence of एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जी। ठीक है। हाँ Direct repeat in the IS elements are present डायरेक्ट रिपीट्स विद within the inverted शायद repeats sir। अब ये देख लेना तुमने, जो ना आए उसको नोट कर लिया। हाँ सर। इसका आंसर बता दूं? यस सर बताइए। आंसर दिखाओ भाई। सी, विद इन इन्वर्टेड रिपीट। विद इन inverted repeats सर ठीक था। ठीक है। एंजाइम दैट कैटलाइजेस द ट्रांसलेशन ऑफ IS element। ट्रांसपोजेज। ठीक है। सेंट्रल ब्लॉक पढ़ो। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि सेंट्रल ब्लॉक में यही था सर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही था। हाँ और जो इलेक्टेमेज थे ये साइड में थे इंटीग्रेस। ठीक। चलो नेक्स्ट। Which of the following is a non-composite transposon? TN3 नहीं उल्टा था, TN3. TN3। Which of the following about the P element is false? 2907 days per long element। Not wrong. 25 days per inverted repeat. अच्छा इज फॉल्स। ओके सर फॉल्स, ये ट्रू है सर। ऐसे क्वेश्चन में रोज गलत करती हूँ एग्जाम में, ये ट्रू फॉल्स वाले, नॉट वाले जिनमें नॉट लिखा होता है उनमें। केयरफुल रहो। यस सर। एक बार तुम निश्चिंत हो गई तो फिर हर दफा जब भी जिस भी एग्जाम में मैंने ऐसे क्वेश्चन किए होते हैं उनका आंसर मुझे रॉन्ग होता। चलो अब ये सिस्टम ठीक है ना कि तुरंत क्वेश्चन भी हो जा रहा है, प्रैक्टिस हो जा रहा है। एग्जाम दोगे सैटरडे को तो ये सर, और इससे थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। हाँ, टफ लेवल में जा सकते हो। अभी टफ लेवल में जाने का था नहीं। ये हाइब्रिडाइजेशन से पी एलिमेंट का ही था सर। हाँ सिंपल पी एलिमेंट। अब ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन से ऑकर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस? क्रॉसिंग बिटवीन पी फीमेल एंड पी एम मेल। सी सर। सी डी सर सी। फीमेल और एम फीमेल। एम फीमेल और पी मेल सर। पी मेल, मेल में वो स्पर्म के थ्रू पी जा रहा था ना। एम का मतलब एब्सेंट, पी इज एब्सेंट। जिसमें सर पी एलिमेंट जिसमें फीमेल में प्रेजेंट होगा वो तो नॉर्मल होगा, वो फर्टाइल होगा। हाँ तो वो हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा ना कि किसमें हो, तो वो फिर डी वाला आंसर। हाँ मेल पी होना चाहिए, फीमेल एम होना चाहिए। यस सर। LTR retrotransposons are abundantly found in LTR sir mammals। mammals। ठीक है। You Lions and swans are example of LTR retrotransposon। composite transposon। non-LTR retrotransposon। Non। Okay sir। यही तो याद करना है LTR। Yes sir। अरे हाँ, they don't have LTR। हाँ बराबर। परफेक्ट मेमोरी डेवलप करना है। Which of the following L1 family is correct? ये नहीं पता सर।
Presence of thought Thought direct repeat. हाँ. Approximately 2 kb. Signs are transcribed by पॉलीमरेज सो नहीं साइंस नहीं पता सर. third. ठीक है. Polymerase 2. हाँ. Signs commonly contain आलू. आलू. आलू वन. हाँ. Which of the following statements is not true? ट्रू ये भी नहीं, मुझे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते करने सर, मुझे नॉट ट्रू. तो ट्रू वाला ढूंढो ना, उल्टा किया करो ना. नॉट ट्रू क्यों ढूंढ रही हो? क्या ट्रू है वो ढूंढो. सर ऐसा करती मैं एग्जाम में सबसे पहले यही क्वेश्चन कर देती हूँ, क्योंकि ये मैंने गलत किया हूँ. अब मैं समझ गया तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है. हाँ सर. नॉट ट्रू. Autonomous and non-autonomous. Supplementary autonomous. This is transferred by central region. Certain repeats in the genome remain fixed. जो ऑड जैसा लगे वही नॉट ट्रू है. Not true. तो जो गलत है. पहला तो ट्रू है, ए तो सर ट्रू है. डी वाला देखो ना, डी वाला. Certain repeats in the genome fixed even after. बी सर. ठीक है ना. यस सर. तो आज की कथा खत्म होती है यहीं पे. यस सर. कल की रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी. आज की भी रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी जाएगी. यस सर. जब होता है अच्छा ना तो सब कुछ अच्छा होता है. करबला तो हो भला. हम्म. सर करबला तो हो भला हो जाता है. बिल्किस के दिल की बात 8:30 बजे इसी चैनल पे.